Hi everyone, welcome you in Physics Coach. My name is Ankit Saraswat. I welcome you in the new series of thermodynamics, and in today's lecture we will cover a very important topic, work done by gas, and we will solve various practice problem. So on the basis of previous discussion like state, system, surrounding, first law of thermodynamics, internal energy, so many concepts we covered till now. On that basis we will learn a very important topic, that is work done by gas. We will know how to calculate the work done through graphically and by mathematically. आपके जितने भी एग्ज़ाम आते हैं, IIT JEE का एग्ज़ाम हुआ, IIT JEE, NEET, EMU, in all these exams there is a very favorite topic of IIT, and every time, every year you find this concept. In academics also you feel in your exams this topic is very important, and you get good rank and you get good result after learning this topic. So let's start this discussion. What is work done by gas? Work done by gas. Clear? तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे what is the work done by the gas. How work is done by the gas means how the system is doing work. For example, I am taking a piston. मैंने एक पिस्टन ले लिया, cylindrical piston, and I am considering some mole of gas. Some mole of gas. गैस कुछ भी हो सकती है. It may be helium, it may be nitrogen, it may be argon, any gas. Clear? यहाँ तक कोई किसी को डाउट? It can be helium, it can be nitrogen, it can be argon. On this piston some small grains, pebbles are placed. जो मैंने पिछले रिकैप करा रहा हूँ मैं थोड़ा सा आपको, pebbles are placed. Now how work is done by the gas? Just try to understand. अगर बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, if the external pressure surrounding to the system, for example this is my system, ये मेरा सिस्टम है और मैं बाहर का वेट थोड़ा सा कम करूँगा, if I reduce the external weight, external force, then my system will do some work. Then I can say work done by the gas, or we can say that work done by the system, if and only if the external pressure is reduced. Clear? But in the quasi-static process and non-quasi-static process we learn. In the quasi-static process every time state is in equilibrium and we do not feel change. Whole system is in equilibrium. But in case of non-quasi-static, what happened? Pressure is not uniform. यहाँ प्रेशर अलग होगा, यहाँ प्रेशर अलग होगा, means there is no uniformity of pressure in case of non-quasi-static gas. So in order to calculate the work done we need to consider a process to be quasi-static, then only I can calculate the work. Clear? समझ आ गया? Now just suppose मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V1. आपने सारे का सारा ग्रेन हटा दिया, you remove all the grains, then what happened? It suddenly come back to a new volume V2 which is higher than V2, greater than V1. It suddenly come back to its in final state, that is V2. But now you need to understand, आपको समझने की बात यहाँ पर है कि अगर मान लीजिए सडनली आपने सारा का सारा वेट हटा दिया, then what happened? The pressure in the system will not be uniform. You are not able to calculate the work done. So in order to calculate the work done you need to consider the process to be quasi-static first. Clear? So मैं यहाँ पे I will consider the process happening in a very slow manner. You remove small weight. I am showing this condition by this example, cylindrical piston. Again I am drawing, just try to understand. For example, this is my piston, this is my piston, and here
some gas is filled. Let P be the pressure exerted by the gas molecule over the system and the piston. This piston is having the area A. Then how much force is applied by the gas? dF. Pressure into area. This will be the force applied by the gas molecules over the piston. Because of this force, gas, we can say that gas will expand, or we can say that piston, this is the piston, will move further. Piston will move in this direction. Why? मैंने आपको वहाँ समझाया था कि there are so many grains. You remove a small grain, जिसकी वजह से क्या होगा? External pressure will reduce, internal pressure will be high. So process will go from inner to outer. Gas will expand, but ultimately this pressure, what I am saying, like this pressure P will be the pressure of a whole gas. Let us suppose the whole gas is applying some pressure over this piston here, on this area. This is the area of the piston. Let us suppose A. Clear? Now dF मिल गया pressure into dA. What do you know by work done? Work done is equal to क्या होता है? Force into displacement. Let us suppose by applying this force, due to this force, our piston will displace by certain delta x amount. मेरा पिस्टन यहाँ से कहाँ गया? यहाँ से था. Now it will come back to its another position. I am drawing with a dotted line. Let's try to understand. Initially it is at this position. After that it will come back to this final position. Then what happened? Initially you can understand gases are trapped in this volume. After this, what happened? This piston will come back to this position. Now you will feel that piston is here. Now gas will expand and come back to this state. Now the gas is in this much of volume. इतने वॉल्यूम में गैस होगा. So our piston will displace from here to here. Let us suppose the linear displacement is delta x. Linear displacement due to this force which is exerted by the gas molecule over the piston. Due to this force, some displacement occurred in the piston, that is linear displacement, and this displacement is acting in the direction of force. So the theta, work done क्या होगा? Work done is equal to the force into displacement, dWf. क्या होगा? dWf is equal to force, small force, डॉटेड डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए dx. क्लियर? व्हेन यू ओपन df here, dx we are considering what? Delta x and cos theta. What is the angle? Since displacement and force is in the same direction, theta will be 0. So it will be df कितना है आपने निकाला? प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा एक्स. So dw क्या आएगा? PdA delta x. So you can understand dA into delta x what? dA area. This is the area. This is dA. Clear? dA देखिए आप वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ. एरिया इंटू लेंथ. So this is the small area into small length. So this is a small volume. dV is equal to क्या होगा? dA multiply delta x. Clear? delta x is very very small quantity. Clear? और आप इसको अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको डेल्टा एक्स मत मानिए, इसको मान लीजिए dx, और आपके लिए आसानी हो जाएगी. ठीक है? मान लीजिए और भी ज़्यादा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. क्लियर? इसको dx मान लीजिए, आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको. dx मानिए, डेल्टा एक्स मानिए, डजेंट मैटर बिकॉज बोथ आर कंपेरेबली स्मॉल. क्लियर? dx थोड़ा ज़्यादा कम इन्फाइनेटली स्मॉल होता है, बट डेल्टा एक्स थोड़ा सा बड़ा होता है, बट डजेंट मैटर. हमें कंसेप्ट समझना है. सो यू कैन अंडरस्टैंड dv इज इक्वल टू dA इंटू dx. क्लियर? समझ आ गया आपको? तो यहाँ से क्या होगा? pw इज इक्वल टू p इंटू dv. dw इज इक्वल टू कितना आ गया? वर्क डन. कितना वर्क किया गैस ने इन. सो dw इज इक्वल टू pdv. व्हाट डज इट मीन्स?
इसका मीन्स क्या है? इट मीन्स दिस इज अ वर्क डन बाय द सिस्टम. सिस्टम क्या है मेरा? ये मेरा सिस्टम है, दिस इज माई सिस्टम एंड दिस डू दैट अमाउंट ऑफ वर्क DW. दिस इज माई सिस्टम. This system do such work on the what? Piston. Or we can say that this system do work on the surrounding. How much work? PdV. किससे? प्रेशर से. So you can understand. अब जैसे जैसे पिस्टन देखिए, अभी तो मान लीजिए ये तो अभी यहाँ की बात करता हूँ मैं. आई एम जस्ट कंसिडरिंग स्मॉल थिंग. आई एम जस्ट कंसिडरिंग द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. बट मेरा अल्टीमेट फाइनल स्टेट क्या है? V2. यहाँ से देखिए, मान लीजिए पिस्टन पहले यहाँ था, पिस्टन यहाँ था मेरा, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पिस्टन. क्लियर? एंड गैसेस देखिए इतने स्पेस में भर रही थी, गैसेस फिल्ड इन दिस मच ऑफ वॉल्यूम. व्हेन दिस पिस्टन विल डिस्प्लेस टू दिस पोजीशन, नाउ व्हाट हैपन? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ द गैसेस विल बी इन द मोर वॉल्यूम. तो गैसेस देखिए अभी पहले यहाँ तक थी, तो कहाँ तक आ जाएंगी? इट विल कम बैक टू इट दिस मच ऑफ वॉल्यूम. ये वॉल्यूम भी मिल जाएगा उनको, गैस को. क्लियर? मान लीजिए डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक, और भी ज़्यादा मान लीजिए, फिर फर्दर मान लीजिए, ऐसा तो होगा नहीं कि यहीं रुक जाएगा. हमने फर्दर एक्सटर्नली वेट को और रिड्यूस किया, गैस विल फर्दर मूव एंड कम बैक. देयर इज फर्दर डिस्प्लेसमेंट एंड इट विल कम बैक टू इट्स अनदर स्टेट. मान लीजिए इसको फर्स्ट स्टेट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको मान लीजिए थर्ड. नाउ यू विल सी, नाउ दिस इज, नाउ अब क्या रहेगा? अब ज़्यादा और वॉल्यूम हो जाएगा गैस के पास. देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा सिस्टम हो जाएगा. गैसेस हैज मोर वॉल्यूम. अल्टीमेटली दिस पिस्टन विल रीचेस टू अ फाइनल स्टेट. फाइनल स्टेट, दिस इज द फाइनल स्टेट. यहाँ तक हमको पिस्टन को क्या लेकर जाना है. और वी कैन से दैट वी वांट दिस मच ऑफ एक्सपेंशन, वी वांट फाइनल वॉल्यूम टू V2 और इनिशियल वॉल्यूम क्या था? V1. V1 क्या है आपका? इनिशियल वॉल्यूम. और V2 क्या है आपका? फाइनल वॉल्यूम. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. V1 इनिशियल वॉल्यूम है, V2 फाइनल वॉल्यूम. आर ऑब्जेक्टिव इज टू डू एक्सपेंशन ऑफ द गैस अप टू व्हाट वॉल्यूम? V2. वी वांट आर गैस टू बी एक्सपेंड अप टू V2. सो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी? यहाँ लिमिट देखिए, ध्यान से देखिए. every time pressure will remain same because the system process is happening very slowly. So every time pressure will remain constant, so we will apply the limit of volume here. So V1 पे कितना वर्क था? there is no work. When it come back to V2, it has some work. we do some work. देखिए V2 वॉल्यूम को करने के लिए आपको यू नीड टू डू सम वर्क, दैट इज W. तो लिमिट पुट करेंगे तो W क्या आएगा? इंटीग्रल PdV. देख रहे हैं आप? हेयर आई एम कंसिडरिंग, देखिए ये जनरल एक्सप्रेशन है. आप ध्यान से देखिए कि आर वॉल्यूम कीप्स चेंजिंग एज वी मूव फर्दर. क्योंकि देखिए यहाँ सिस्टम की बात हो रही है. System volume keeps changing, so our objective is to displace the system from its initial state to final state. Clear? So remember, this is the expansion work. This is the expansion work. Expansion work. Clear? Now, if the pressure, this is a general expression, ये हर जगह valid है. This is the general expression, it is valid everywhere. If the pressure is, let us suppose we are not changing the pressure. We are not changing the pressure. Let us suppose isobaric process. Isobaric process. Process means ऐसा process जो constant pressure पे होता है. Constant pressure पे होता है. ऐसा process which is happening at a constant pressure. I will tell this thing. First I will tell you types of thermodynamic process, because many of the students don't know कि isobaric process क्या होता है, what is isothermal process, what is adiabatic process, what is polytropic process. No one knows, but वो लोग वर्क पढ़ लेते हैं. क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ने का? हाउ प्रेशर इज कांस्टेंट इन आइसोबैरिक प्रोसेस. कोई प्रोसेस हो रहा है, प्रेशर कैसे कांस्टेंट है? हाउ?
ट्राई टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, खुद से पूछिए, देन यू विल गेट द आंसर. So we will understand this thing in the later section, but in today's lecture we will cover the work done by gas. So work done by gas क्या होगा, W is equal to integral P dV, वॉल्यूम V1 से V2. Here मान लीजिए आपको प्रेशर देखिए, याद रखिए कि पर्टिकुलर स्टेट पे प्रेशर क्या होगा, इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा. कब? when it is a process is happening very slowly and it is a quasi static pressure. Clear? So here there may be chances like pressure may be constant, pressure may not be constant. यहाँ मैंने ये कंसिडर करके इस प्रोसेस को नहीं करा कि यहाँ पर क्या है, इट इज दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, बट इन केस ऑफ रिवर्सिबल P will change, in case of irreversible pressure will be different. Clear? Because irreversible process the system has not uniform pressure, uniform state. That's why in irreversible process we are generally take this pressure to be the external, P external. Whatever the external pressure is acting on the system we generally take in calculation of work done. While in case of what we do, while in case of reversal process we generally take this pressure is the pressure of gas. Clear? Now try to understand, अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया है, if the graph of pressure and volume, ध्यान से देखिए, you are removing the external pressure, external force, you are decreasing the external force due to which there is some expansions occur, gas is doing some work in the direction of increasing displacement, in the direction of increasing volume. It means volume is increasing, pressure is decreasing. Then this is the initial state, this is the final state, this is the expansion process. कैसा प्रोसेस है? एक्सपेंशन प्रोसेस. देखिए, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, then gases molecule will feel more happy and there is a डिक्रीमेंट इन द एनर्जी भी उनकी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स पे. प्रेशर कम हो रहा है, इट मीन्स एनर्जी इज डिक्रीजिंग, इट इज़ कन्वर्टेड टू सम अदर फॉर्म. हियर द प्रेशर इज रिड्यूसिंग एंड द वर्क वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. सो इफ़ यू फाइंड दिस केस लाइक वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एज प्रेशर इज डिक्रीजिंग, सो इट विल बी द एक्सपेंशन वर्क. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस फ्रॉम ग्राफिकली, अगर आपको ग्राफिकली इसको कैलकुलेट करना है, देन कुछ नहीं करना, आपको एरिया अंडर PV कर्व निकालना है इनिशियल और फाइनल के बीच का. वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल, कुछ नहीं करना, इसका एरिया अंडर PV कर्व, ये PV डायग्राम दिया हुआ PV कर्व, दिस इज द PV कर्व. क्या दिया हुआ आपको? PV कर्व. यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द एरिया अंडर PV कर्व, यू गेट द वर्क डन डायरेक्टली फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द ग्राफ. मैथमेटिकली आपको प्रेशर का फंक्शन दिया होगा, वॉल्यूम के टर्म्स में आपको निकालना पड़ेगा. यू विल गिव इन द प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, और जो भी है मैं आई विल टेल यू इन द वेरियस प्रोसेस लाइक आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ऑल दोज प्रोसेस आई विल टेल यू लेटर. सो किसी को कोई डाउट अभी तक बताइए. वी विल टेक वन न्यूमेरिकल, सो लेट्स राइट द न्यूमेरिकल. So let's see this problem here. Calculate the work done by the gas as it is taken from the state A to B and then B to C and then C to D. Let's try to understand this problem. We need to calculate the work done. अगर किसी प्रोसेस को, कोई प्रोसेस हो रहा है A से B, फिर B से C, C से A, तो आपको वर्क निकालना है. टोटल वर्क कितना होगा? तो टोटल वर्क इज इक्वल टू द वर्क डन इन द A से B प्रोसेस में कितना हुआ, B से C में कितना हुआ और C से A में कितना हुआ. क्लियर? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आपको A से B में वर्क निकालना है तो देखिए A से B को देखिए ध्यान से. एज प्रेशर यू कैन अंडरस्टैंड, एज प्रेशर इज कांस्टेंट बट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. तो ये क्या है? आइसोबैरिक एक्सपेंशन. तो क्या वॉल्यूम का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रल P dV. कुछ नहीं करना, एरिया निकाल लो यहाँ का. जस्ट कैलकुलेट द एरिया. एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया? A से B वर्क डन 250.
450 माइनस 200। देखिए आपको किसी में से किसी को माइनस कर लीजिए, आप याद रखना ये दिस इज द एक्सपेंशन प्रोसेस। तो एक्सपेंशन में वर्क डन क्या रहता है, पॉजिटिव, और कंप्रेशन में वर्क डन क्या रहता है, नेगेटिव। दिस इज द कंप्रेशन वर्क डन, दिस इज द एक्सपेंशन। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, या वॉल्यूम इंक्रीज कर, इट मीन्स वर्क हमारा पॉजिटिव ही आएगा। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। 1 kPa में कितने पास्कल होते हैं, 10 टू द पावर 3 पास्कल। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आपका वर्क डन क्या होगा, प्रेशर इंटू सिंपल एरिया निकाल दीजिए। तो 120 इंटू पास्कल में चेंज करिए इसको, 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम, कितना चेंज आ रहा है, 250 से 200 से 450 सीसी में कितना आ रहा है, 300 400 250 का चेंज आ रहा है। क्लियर। तो 250 सीसी को चेंज करिए, उसमें कितना होगा, 10 की पावर -6। देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम ए से बी। निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक, जूल में आंसर आएगा। आई एम नॉट हेल्पिंग यू, आई एम जस्ट गिविंग यू द वे टू अप्रोच एनी प्रॉब्लम। तो ए से बी निकाल लिया आपने। इन द सिमिलर वे यू कैन इजीली कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। अब ध्यान से देखिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रोसेस इज हैपनिंग फ्रॉम बी टू सी। आप देख रहे हैं प्रेशर इज इंक्रीजिंग बट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। देर इज नो, ए पे जो बी पे वॉल्यूम है वही वॉल्यूम क्या है, सी पर। इट मीन्स डेल्टा वी, देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। इट मीन्स दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। सो इन आइसोकोरिक प्रोसेस व्हाट हैपन, वर्क डन इन द प्रोसेस बी टू सी विल बी जीरो। वाई, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल पी डी वी, dv, there is no change in volume. It means volume is constant, dv, here v is constant, so differential of volume, constant thing is 0, so work done from b to c will be 0. clear. now c से कहाँ देखेंगे, c से a में। आप देखिए c से a में जा रहे हैं, तो देखिए इस प्रोसेस को देखिए, यहाँ देखिए दोनों चेंज हो रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। तो कुछ नहीं करना, इसके अंडर का एरिया निकाल लो, यू नीड टू कैलकुलेट दिस एरिया। तो ये बेसिकली है कि ट्रेपेजियम ही तो बन गया। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। क्लियर। तो इसका एरिया निकाल दीजिए, कितना हो गया, देखिए दिस एरिया प्लस दिस एरिया। क्लियर, समझ आ गया आपको। और यहाँ आप देख रहे हैं कि देखिए प्रेशर इज डिक्रीजिंग, एज प्रेशर इज डिक्रीजिंग व्हाट हैपन, वॉल्यूम। देखिए इस प्रोसेस को ध्यान से समझिए, ये ना तो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम दोनों ही वेरी कर रहे हैं। अभी हमको यहाँ एक चीज़ फोकस करनी, ध्यान से देखिए कि 200 kPa यहाँ पर, यहाँ 120 kPa है। और ये कैसा प्रोसेस है, आई विल टेल यू लेटर, अभी आपको समझ नहीं आएगा। देन आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन। तो सी से ए के प्रोसेस में, सी से ए में कितना वर्क होगा, इसका निकाल देंगे एरिया, क्या होगा देखिए कितना एरिया है, बताइए सॉल्व करके बताइए। सो आप देख रहे हैं कि सी से ए में क्या हो रहा है, हमारा वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। इट मीन इज वर्क इज डन ऑन द गैस, तभी क्या होगा आपका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। देन इट विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा, सिंपल हमको पता है। वी विल कैलकुलेट दिस एरिया, तो एरिया क्या होगा देखिए, इसको आपको पता है वर्क डन कितना था, वर्क डन इन द प्रोसेस सी टू ए इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस वर्क डन ऑफ दिस ट्राइंगल, ए ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए इस रेक्टेंगल का वर्क डन आपने निकाल लिया, दैट इज द वर्क डन ए से बी, प्लस ट्राइंगल का क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ध्यान से देखिए 200 से 180 के बीच में, देखिए हाइट कितना होगा 80 और बेस कितना होगा 450 माइनस 200, यानी 250 का बेस होगा और 10 टू द पावर -6। यू नीड टू देखिए ऐसा ही को फॉलो करना है बिल्कुल। क्लियर। और प्रेशर क्या होगा 80 kPa। क्लियर, समझ आ गया। तो देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, और देन दिस वैल्यू जो भी आएगी उसका साइन क्या लेना है, नेगेटिव। इसका जो आंसर आएगा ये आएगा, आप इसमें कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा, लेकिन 40 नहीं लिखना, क्या लिखना है -40। याद रखना कि साइन को कभी नहीं भूलना। पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स में यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ साइन। इफ द वर्क इज डन बाय द गैस देन you need to take the sign positive.
if work is done on the gas, how will you recognize that work is done on the gas and work is done by the gas? ये देखा करिए कि प्रेशर को रिड्यूस करने से वॉल्यूम पे क्या असर पड़ रहा है। यहाँ प्रेशर देखिए कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कैसे कर रहा होगा, देयर इज सम वर्क इज डन बाय द गैस, तभी इंक्रीज करेगा। यहाँ देखिए सी से ए में वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम खुद से डिक्रीज तो नहीं होगा, देयर इज सम वर्क इज डन ऑन द गैस, सो वी विल टेक द वर्क डन टू बी नेगेटिव। बिकॉज आप देखते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू पी डी वी, यानी बी फाइनल माइनस वी इनिशियल डी डब्ल्यू। तो फाइनल वॉल्यूम अगर ज़्यादा हुआ, इफ़ वी एफ इज ग्रेटर देन वी आई, तो वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव। इफ वी एफ इज लेस देन वी आई देन वर्क इज नेगेटिव। वेरी वेरी सिंपल। तो आप देखा करिए वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम, इट मीन्स देयर इज सम वर्क इज डन बाय द गैस। इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, इट मीन्स वर्क इज डन ऑन द गैस। क्लियर? किसी को कोई डाउट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। देखिए कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको दी जाए, IIT JEE का भी एग्जाम में बैठे हो आप लोग, नीट वगैरह का एग्जाम दिया हो, फर्स्ट ट्राई टू रीड द प्रॉब्लम ट्वाइस, देन ट्राई टू, आपके हाथ पेन पेपर चलना चाहिए। रीड द क्वेश्चन केयरफुली once or twice, then understand this problem and try to recognize the concept you learn. Then it is very very easy to solve any problem. Easily approach, आप कम समय में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल मेक ए मिस्टेक एंड वेस्ट योर टाइम। सो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है गैस इज कंटेन इन अ वेसल फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन। समझ आ गया? द कंटेनर इज प्लेस्ड ऑन अ हॉट स्टोव, a total of 100 calorie of heat, you can understand 100 calorie of heat is given to the gas is our system, and the gas does 40 joule, यानी gas does, it means there is a expansion work। तो वर्क, इस वर्क को क्या लेंगे आप, पॉजिटिव 40 जूल, बिकॉज वर्क इज डन बाय द गैस। 100 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू द गैस, इट मीन्स सिस्टम को हीट दी गई। सो डेल्टा क्यू, हीट कितना लेंगे, हीट गिवन टू सिस्टम, इट विल बी पॉजिटिव 100 कैलोरी। लेकिन याद रखिए कैलोरी में, जूल में, यू नीड टू कन्वर्ट दिस। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना जूल होता है, 4.18 जूल। तो 100 कैलोरी में कितना होगा, 418 जूल। 100 कैलोरी में कितना होगा, 418 जूल। वेरी सिंपल। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो यू नीड टू अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यू विल अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू कितना होगा, 418। डेल्टा यू पूछा है, वर्क डन कितना किया, वर्क इज डन बाय दी, कितना वर्क किया, 40 जूल। तो डेल्टा यू कितना आएगा, 418 माइनस 40 जूल। सो व्हाट विल बी द आंसर, यू कैन इजीली कैलकुलेट, कितना आएगा, 378 जूल। देखिए कभी भी आपने आंसर निकाल दिया, क्या आंसर निकालने से काम चल जाता है, नो। डेल्टा यू क्या है, इट मीन्स U2 माइनस U1 इज इक्वल टू 378। देखिए यहाँ पे 2 और 1 मीन्स इनिशियल स्टेट, 2 मीन्स फाइनल स्टेट। Here you can easily understand the delta U is positive, means internal energy is increasing, means आपने सिस्टम को 418 जूल दिया, जिसमें से सिस्टम ने कुछ एनर्जी यूज करी, दैट इज 40 जूल इन परफॉर्मिंग सम वर्क। सो बची कुछ एनर्जी कहाँ गई, इट इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ, दैट एनर्जी इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। That is why the system temperature will increase and you feel hot when you put your finger in that water. Clear? The same process is happening when you are जब आप पानी उबालते हैं घर पे, तो क्या होता है, you are giving some heat and system is expanding, system is doing some work, ढक दीजिए उसको। After that what happen, you feel hot when you dip your finger in that, thermometer लगाइए, you will feel the temperature. Clear? So till now whatever we covered, we solve various simple problems. In the upcoming lecture, in the previous lecture also, we will solve so many tough problems and we will solve, हम लोग स्लो से स्टार्ट करेंगे, इजी प्रॉब्लम से we will go to the tougher problem.
बट आपको ईजी कंसेप्ट नहीं पता होगा, बेसिक क्लियर नहीं है, देन यू कांट सॉल्व एनी प्रॉब्लम. So once again, thank you so much for such love, for such support to our channel. You are really attentive while I am taking your class, and you are learning a good concept from here. So keep asking your doubt and keep sharing this video to the other newly members so that they can easily get the concept of work. ये जो वर्क का कंसेप्ट है बहुत बहुत आसान वे में आपको बताया गया है. यू विल नॉट फाइंड दिस मेथड ऑफ टीचिंग एनीवेयर. सो कीप लर्निंग फ्रॉम हेयर, कीप आस्किंग योर डाउट, कीप हेल्पिंग अदर्स. one day you will be rock. So thank you so much. Thanks a lot.